Today we are going to discuss organic chapter haloalkane and haloarene. Alkane. What do you mean by haloalkane? When we subtract hydrogen from alkane and add halogen, that is formed the haloalkane. In monohaloalkane, there is only one halogen. In dihaloalkane, there are two halogens. It is of two types, geminal. In geminal, on one hydrogen, there are two halogens, and in vicinal, on two carbons, there are two halogens. In trihaloalkane, there are three halogens and form haloforms. Like example, chloroform, bromoform, in tetrahaloalkane, there are four halogens like carbon, tetra, chloride. In allylic halide, there is double bond carbon, and after one carbon halogen is put. This is known as allylic halide. दो कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उसके साथ एक और कार्बन आएगा और फिर हैलोजन आएगा, दैट इज allylic halide. In vinylic, halogen is bonded with double bond carbon. In benzylic, there is benzene and CH2 and halogen. In haloarenes, halogen is on benzene ring. Next, we discuss preparations of alkyl halide. First method is direct halogenation. Indirect halogenation, जो halogen है वो add होता है in the presence of sunlight. और reactions जो है proceed होती है जब तक tetrahaloalkane ना बन जाए. This is from dihaloalkane. Then from trihaloalkane. Then from tetrahaloalkane. And this is free radical mechanism. Bromination. This is chlorination. Bromination भी ऐसे ही proceed होएगा in the same way. But जब iodine हम ऐड करेंगे
तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड्स में, क्यों ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है? क्योंकि HI is a strong reducing agent. We have to put HNO3 and HiO3 that is strong oxidizing agent. Next preparation is from alkene, that is from the Markovnikov rule. ये रूल कहता है जो हैलोजन है वो वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड के जहाँ पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, या फिर हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। दैट इज़ द मार्कोनिकोव रूल। एग्जाम्पल, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कार्बोकेटायन stability, that is tertiary, secondary and primary. I will give you a question. कहाँ पे Br आएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पे Br आएगा, बट दिस इज नॉट। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, पहले इसके डबल बॉन्ड यहाँ गए, हाइड्रोजन फ्रॉम HBr form the carbocation, but this is not stable. Here this is secondary carbocation, और जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा tertiary carbocation। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होएगी, and the product is
this. Next is anti-Markovnikov rule, and it is also known as peroxide effect and Kharash effect. ये जो रूल है इसके अंदर क्या होएगा, इसमें जो हैलोजन है वो वहाँ आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, मीन्स मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट. बट जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो इट इज़ पॉसिबल only in case of HBr, not in HCl and HI. HBr में जो चेन इनिशिएशन है एंड चेन प्रोपगेशन है, both steps are exothermic. While in HCl, first step is exothermic and second is endothermic. And in HI, no step is exothermic. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होएगा, बट इन केस ऑफ HCl मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होएगा. नेक्स्ट इज preparations from alcohol. First method is concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. यहाँ पे हमने HCl और जिंक क्लोराइड पाया. यहाँ पे हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट भी होगा एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी आएगा. रिटेंशन का मतलब है जहाँ पे OH है वहीं पे Cl आए, और इन्वर्टेड का ये मतलब है जहाँ पे OH है उसके अपोजिट साइड जो है न्यू हैलोजन आए, दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट. सेकेंड मेथड जो है फ्रॉम सॉलिड एंड गैशियस PCl5. जब हम गैशियस लेंगे तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा और जब हम सॉलिड लेंगे तब हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा
एग्जाम्पल। कौन तो बताओ। यहाँ पे गैशियस लेनी है या सॉलिड। ये देखो, यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट आया, और यहाँ पे यहाँ पे भी ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया रिटेंशन और ये हो रहा है इन्वर्टेड। यहाँ पे अगर PB5 आ जाए या PI5 से रिएक्शन, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जो P का साइज़ है वो बहुत बड़ा है इनको एडजस्ट करने में। नेक्स्ट मेथड इज डार्जन मेथड। इट इज़ फ्रॉम SOCl2। यहाँ पे SO2 रिलीज होएगी और यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट मेथड है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आइडोफोम वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसे हम फिंकल स्टीन रिएक्शन भी बोलेंगे, लाइक दिस। एसीटोन, PPT, एसीटोन, अगर तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो NiA है इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है ड्यू टू फजान रूल। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन क्लास 11th। नेक्स्ट हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें फ्लोरो एल्केन्स बनेंगे। इसमें हम सिल्वर फ्लोराइड पाएंगे या मर्करी फ्लोराइड पाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है हुंस-डिकर रिएक्शन। इसे हम बोराडीन हुंस-डिकर रिएक्शन बोलेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स और ब्रोमीन यूज़ करेंगे एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। Here we form the bromine products. ब्रोमीनो एल्केन्स बनेंगे इससे, as I learned from बोराडीन from bromine.